Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we were discussing on product rule in the last lecture. Basically, the product rule is nothing but the intersection of two probabilities, of two events, sorry. So whenever we need to find the probability of intersection of two events, we use the product rule. Okay. So in product rule, there are two types of event. Uh, One is the case when the two events are dependent, and the other one is the case when the events are independent. So there are two types of product rule. The first one is probability of A intersection B, which is in fact probability of A and the probability of B given A. Here this one is the marginal probability and the other one is called the conditional probability. So the product of marginal of A, the probability, marginal probability of A and the conditional probability of B, given that A has occurred. Okay. So the product of these two becomes the intersection of these two events. Okay. So this is in the for the case when the events are dependent. Similarly, for example, in this situation, A is actually the prior event. Okay, whenever we talk about conditional probability, there are two types of event. The event which comes before this symbol is the present event. It is called a present event, and after this slash, this event is called the past event. Okay, or the prior event. So here in this case, A is the event which has occurred already, and the probability of occurring B is the conditional probability. Okay, so in this case, A is actually the past event. So similarly, for example, if we have event B event is for example is a past event and A is the present event, then the product rule would be probability of A intersection B would become just a change in the writing of the event. Instead of writing A, we can write here probability of B, and instead of probability of B given A, we should write A given B. So दोनों केसेस बन सकते हैं, यानी कि इस केस में जो वो A पास्ट इवेंट है और B प्रेजेंट इवेंट है, और ये आप प्रोडक्ट रूल वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर B जो है वो पास्ट इवेंट हो तो फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A वुड बी रिप्लेस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और फिर यहाँ B गिवन A वुड रिप्लेस बाय A गिवन B. ठीक है, तो ये A और B नोटेशंस हैं. आप जो है वो कोई और नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल KLM कोई भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं. सो प्रोडक्ट रूल जो है वो दिस प्रोडक्ट रूल फॉर डिपेंडेंट इवेंट, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B जो है वो किसकी इक्वल होगा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है, तो व्हेनेवर वी हैव इंटरसेक्शन इन बिटवीन टू इवेंट्स, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये बिल्कुल जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एडिटिव रूल. एडिटिव रूल का मतलब क्या है कि दो इवेंट्स का यूनियन कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. whenever we have a union of two events, हम क्या करते हैं, एडिटिव रूल क्या कहता है कि उनको आपस में क्या करो, बीच में प्लस कर दो, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट we have a fuse box containing 20 fuses of which 5 are defective. ठीक है, तो 20 में से 5 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है. If two fuses are selected at random and removed from the box in succession without replacing the first, what is the probability that both fuses are defective? अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन जो है वो whenever without replacement is there, तो ये डिपेंडेंट इवेंट कहलाता है, और जब भी विथ रिप्लेसमेंट होगा तो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा. तो यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब है कि
आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है कितने की, 20 फ्यूजेस में से 5 डिफेक्टिव हैं, और अगर आप इफ़ यू आर सिलेक्टिंग 2 फ्यूजेस फ्रॉम दोज रैंडमली, और किस तरह कर रहे हैं, रिमूव फ्रॉम द बॉक्स इन सक्सेशन, यानी आपने पहले एक फ्यूज़ उठाया और फिर उसके बाद उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, फिर आपने दूसरा फ्यूज़ उठाया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्यूजेस आर डिफेक्टिव, तो यानी कि आपको जो वो दोनों डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 5 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 20। इसका मतलब है कि आप पहला जो फ्यूज़ आप सेलेक्ट करोगे वो कितना होगा, 5 में से कोई भी एक आप सेलेक्ट करोगे, तो पहला जो डिफेक्टिव है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बज़ाहिर है 5 डिफेक्टिव में से कोई भी एक आएगा, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है डिफेक्टिव की, 5 आउट ऑफ कितने फ्यूजेस हैं, 20। तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो फ्यूज़ डिफेक्टिव सेलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स, हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम टू बी डिफेक्टिव, 5, तो न्यूमरेटर में आएगा 5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 20 फ्यूजेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट डिफेक्टिव इज़ 5/20। तो 5/20 को हम क्या कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं। तो 5/20 जो है वो उसको सिंप्लीफाई करें तो 1/4। अच्छा, अब चूंकि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ फ्यूजेस आर डिफेक्टिव, तो अब इसमें तरीका ये है कि एक इवेंट को आप ले लें कि ए बी द फर्स्ट फ्यूज़ डिफेक्टिव, और बी को आप ले लें कि सेकेंड फ्यूज़ इज़ डिफेक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि दोनों डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ए भी डिफेक्टिव हो एंड बी भी डिफेक्टिव हो। तो इसका मतलब है यू नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन का मतलब है वी नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। और डिपेंडेंट इवेंट क्यों है, इसलिए कि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि पहला जो इवेंट है वो है फर्स्ट डिफेक्टिव की, उसके बाद जो दूसरा इवेंट है, दूसरा इवेंट अकर होने के लिए पहला जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दूसरे की प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें पहला जो इवेंट अकर हो चुका है तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो दूसरे इवेंट में आएगा। ओके, यानी कि अब जो है वो जो चूँकि आपके पास टोटल 20 फ्यूजेस थे एंड यू आर नॉट रिप्लेसिंग द फर्स्ट फ्यूज़, सो कितने बच जाएंगे, 20 में से एक निकल गया तो कितने बच गए, 19 बच गए। इसी तरह डिफेक्टिव कितने थे, 5 थे। एक डिफेक्टिव आपने फर्स्ट जो इवेंट था उसमें एक डिफेक्टिव आ गया, तो अब बचे कितने डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव बचे। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है बल्कि क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। बी की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, तो ए अकर हो गया, इसका मतलब है डिफेक्टिव एक कम हो गए, टोटल फ्यूज़ 20 थे, 20 में से एक कम हो गया, 19 हो गया। तो अब डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/19 होगी। तो इनफैक्ट यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई कि जो ना 1/4 को मल्टीप्लाई करें 4/19 से, तो ये 4 कैंसिल आउट होके क्या आंसर आएगा फाइनल, 1/19 शुड बी द फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कंडीशनल द प्रोडक्ट रूल, कि जब भी आपको दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो फिर दो केसेस हैं कि आपने ये देखना है कि क्या वो आपस में दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। इसी तरह कंसीडर अनदर एग्जांपल, सेम प्रोडक्ट रूल डिपेंडेंट इवेंट के लिए। ये बड़ा जो है वो पॉपुलर एग्जांपल है। वन बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल। तो एक बैग है जिसमें 4 वाइट बॉल है, बैग नंबर 1 जिसमें 4 वाइट बॉल है और 3 जो है वो क्या है, ब्लैक बॉल है। एंड अ सेकेंड बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। तो सेकेंड बैग के लिए जो ना वो कंडीशन क्या है, अब सेकेंड बैग में जो है वो क्या है, 3 वाइट है और 5 ब्लैक बॉल्स है। अब क्वेश्चन किस तरह बन रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड अनसीन इन द सेकेंड बैग। आपने यहाँ से एक बैग नंबर 1 से एक बॉल उठाया
और ये नहीं देखा कि वो वाइट था या वो ब्लैक था। तो कोई भी कलर हो सकता है, क्योंकि दो ही कलर है तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा। इसमें से आपने एक बॉल उठाया और सेकंड बैग में डाल दिया। तो अगर वो बॉल सेकंड बैग में 3 वाइट है 5 ब्लैक है, तो अगर बैग 1 में से ब्लैक बॉल अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं तो 3 वाइट तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 5 ब्लैक जो थे वो एक एडिशनल ब्लैक आने की वजह से बैग 2 में कितने ब्लैक हो जाएंगे? 6 ब्लैक्स हो जाएंगे, जो कि इनिशियली कितने 5 ब्लैक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसा है, आप सिंपली यू आर सेलेक्टिंग वन बॉल फ्रॉम बैग 1 एंड प्लेस्ड इनटू सेकंड बैग और अनसीन करके। तो इसका मतलब ये है कि जब अनसीन है तो दो सिचुएशन बनेगी, या तो ब्लैक जाएगा या फिर वाइट जाएगा। अगर वाइट जाए तो वाइट जो कि शुरू में इनिशियली कितना था 3 था, अगर बैग 1 में से वाइट आता है तो वाइट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। पहले 3 था, एक वाइट और आ गया तो कितने हो गए? 4 हो गए। अगर वाइट होगा तो ब्लैक अनचेंज होगा, ब्लैक 5 थे बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक 5 ही रहेगा। लेकिन अगर ब्लैक चला जाए तो वाइट अनचेंज होगा, 3W रहेगा, वाइट 3 रहेंगे, और ब्लैक जो है वो इनिशियली 5 थे, एक एडिशनल आने की वजह से ब्लैक जो वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज़ ब्लैक। अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज़ क्या है? सेकंड बैग इज़ ब्लैक। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लैक। इसका मतलब है कि अब आप जो यहाँ से सेकंड बैग से आप एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी भी दो सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन क्या होगी कि फर्स्ट ब्लैक आए, सेकंड से भी ब्लैक हो। तो क्या होगा? फर्स्ट में से भी ब्लैक आए और सेकंड से भी ब्लैक आए। एक तो ये सिचुएशन होगी ब्लैक की। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि फर्स्ट से तो वाइट अंदर गया, बैग 1 से वाइट गया बैग 2 में, अब बैग 2 से आप जो एक बॉल उठा रहे हैं वो क्या है? ब्लैक हो। इसका मतलब है कि W1 हो, यानी फर्स्ट बैग से वाइट हो और सेकंड बैग से ब्लैक हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन में जो इंटरेस्टेड है, जो उसमें प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की फाइंड करनी है वो क्या है? सेकंड बैग जो है वो ब्लैक हो। तो सेकंड ब्लैक कहाँ से हो सकता है? एक तो ये सिचुएशन है सेकंड ब्लैक, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? सेकंड ब्लैक ये हो सकती है। इसका मतलब है कि एक फर्स्ट में ब्लैक हो, सेकंड ब्लैक हो, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? सेकंड ब्लैक हो और फर्स्ट में वाइट हो। इसके अलावा दो मज़ीद सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए इस क्वेश्चन में ये कारआमद नहीं है। इट्स नॉट यूजफुल बिकॉज इसमें क्या है? सेकंड में वाइट है, इस सिचुएशन में भी क्या है? सेकंड में वाइट है। तो सेकंड वाइट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे लिखा होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम सेकंड इज वाइट, अगर ये लिखा होता ब्लैक की जगह वाइट होता, तो फिर हम ये सिचुएशन को लेते क्योंकि सेकंड वाइट यहाँ पर भी आ रहा है, और एक इसको लेते क्योंकि सेकंड वाइट यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब प्रोबेबिलिटीज को देख लेते हैं कि इस बैग में से ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कितने बॉल्स हैं? 4 + 3 7 बॉल्स थे। ब्लैक कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ब्लैक प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ब्लैक फेवरेबल है ब्लैक, तो ब्लैक कितनी है? 3, और टोटल कितनी है? 4 + 3 7। तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। और यहाँ से वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वाइट है टोटल 4, टोटल बॉल्स है 7, तो वाइट आने की क्या है? 4/7। और जब ब्लैक अगर यहाँ पे आ जाए तो ब्लैक 5 थे और एक एडिशनल ब्लैक आने की वजह से ब्लैक कितने हो गई? 6 हो गई, और वाइट वैसे के वैसे 3 रहा, तो 6 + 3 टोटल सैंपल स्पेस हो गए 9। अब सेकंड बैग में से ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लैक है 6 और पॉसिबल सैंपल स्पेस है 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या है? 6/9 है। इसी तरह अगर वाइट आ जाए तो वाइट टोटल है 3, टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस है 9, तो वाइट की है 3/9। इसी तरह सेकंड बैग में से फर्स्ट वाइट हो और सेकंड ब्लैक हो, तो क्या है सेकंड ब्लैक की?
ब्लैक जो है वो यहाँ से वाइट जब आया तो 3 वाइट था, एक वाइट और एडिशनल आने की वजह से 4 वाइट हो गया। 4 वाइट प्लस 5 ब्लैक्स कितने हो गई, 9 बॉल्स हो गई। और अगर ब्लैक आता है सेकेंड टाइम्स तो ब्लैक आपके पास कितनी है, 5 ब्लैक्स है। तो 5/9, यहाँ पे ये गलती है हो गई, ये 6/9 नहीं है, ये क्या है 5/9 है। यहाँ पे सही लिखा हुआ ये 5/9 है। इसी तरह ब्लैक वाइट आने की क्या है, वाइट है 4, तो 4/9 है वाइट आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें जो है इसमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है सेकंड ब्लैक की। तो फर्स्ट ब्लैक सेकंड ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक की 3/7 है, सेकंड ब्लैक की क्या है 6/9 है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो विल गेट द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सिचुएशन यानी कि B1 B2 की। इसी तरह W1 B2 जो है वो क्या है, W आने की है 4/7 और ब्लैक आने की क्या है 5/9। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों इवेंट में से क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी कि बीच में कंडीशन क्या है, उर्दू वाला जो वो सॉरी इंग्लिश वाला और, यानी कि ये भी हो सकता है जिसमें एक ये सिचुएशन है जिसमें कि सेकंड ब्लैक हो और एक ये सिचुएशन है जिसमें कि सेकंड ब्लैक हो। तो सेकंड ब्लैक है लेकिन फर्स्ट भी ब्लैक है, सेकंड ब्लैक है लेकिन फर्स्ट वाइट है। तो ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, तो दिस और दिस। सो बीच में चूंकि और है लिहाजा और का मतलब है वी नीड टू ऐड दिस टू प्रोबेबिलिटी। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में दो रूल्स इस्तेमाल हुए। ये और ने क्या किया, एडिटिव रूल इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव रूल या प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हुआ। और ये प्रोडक्ट रूल भी कौन सा वाला इस्तेमाल हुआ है, डिपेंडेंट इवेंट इस्तेमाल हुआ है। बिकॉज डिपेंडेंट क्यों है, इसलिए कि फर्स्ट ब्लैक जब यहाँ चला गया तो अब जो यहाँ से ब्लैक आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस एडिशनल ब्लैक के आने की वजह से आउटकम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो इवेंट है ये क्या कंडीशनल इवेंट है। यानी ये 6/9 जो है ये 6/9 क्यों हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था 5 ब्लैक्स थे लेकिन एक ब्लैक के एडिशनल आने की वजह से ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी चेंज जो हो रही है 5/9 से 6/9 जो हो रही है वो किस लिए हो रही है, ड्यू टू फर्स्ट इवेंट अकर। जब फर्स्ट इवेंट अकर हो गया तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट जो है वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए B2/B1 ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी। इसी तरह यहाँ पर भी B2/W1 यानी फर्स्ट जो ना वाइट है और सेकंड में ब्लैक है। तो यू जस्ट नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू प्रोबेबिलिटीज़। ये 3/7 और 6/9 को मल्टीप्लाई कर दें, 4/7 और 5/9 को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लीजिए तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 38/63। तो इस क्वेश्चन में और वेरिएशन क्या आ सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड इज़ वाइट। तो अगर वाइट होगा इसका मतलब है कि ये सेकंड वाइट एक ये सिचुएशन है, सेकंड वाइट एक ये सिचुएशन है। तो ये इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को फिर आप क्या करें, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड इज़ वाइट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। इसके बाद फिर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के हवाले से। अभी दो एग्जांपल्स जो देखे हमने, एग्जांपल 4 और 5 वो डिपेंडेंट इवेंट के लिए था। अब हम जो देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। क्वेश्चन है, स्मॉल टाउन हैज़ 1 फायर इंजन एंड 1 एम्बुलेंस अवेलेबल फॉर इमरजेंसीज। द प्रोबेबिलिटी दैट द फायर इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड इज 0.98। अब ये क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर इंजन की अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, यानी सिर्फ और सिर्फ फायर इंजन के हवाले से प्रोबेबिलिटी गिवन है। और फिर साथ में द प्रोबेबिलिटी दैट एम्बुलेंस इज अवेलेबल व्हेन कॉल्ड इज 0.92। इसका मतलब है सिर्फ एम्बुलेंस की प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज व्हाट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन इज, in the event of an injury resulting from a burning building, find the probability that both the ambulance and the fire engine will be available, assuming they operate independently. अब देखें ये क्वेश्चन में ये मेंशन हो गया कि ये दोनों इवेंट्स यानी अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ द फायर इंजन दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी अगर फायर इंजन अवेलेबल हो या फायर इंजन अवेलेबल ना हो,
एम्बुलेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह एम्बुलेंस अवेलेबल हो या अवेलेबल ना हो, फायर इंजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोनों एम्बुलेंस और फायर इंजन बोथ आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। और क्वेश्चन में क्या है, बोथ अवेलेबल, दोनों की अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, एम्बुलेंस एंड फायर इंजन। तो इसका मतलब है कि बीच में एंड है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल शुड बी अप्लाइड हियर। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 98% है, बी की प्रोबेबिलिटी 92% है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल जस्ट गेट द आंसर। इसी तरह अगर यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएशन लाएं हम, तो क्या वेरिएशन आ सकती है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both ambulance and the fire engine will not be available, for example। तो will not be available हो, इसका मतलब है कि A भी अवेलेबल नहीं है और B भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम। तो A प्राइम की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.98, B प्राइम की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.92। यहाँ से भी 1 में से माइनस कर दें 92 से, तो 8% इसकी चांसेस है, 2% इसके चांसेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम प्रोडक्ट रूल को अगर एक्सटेंड करें, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है कि व्हेनेवर वी हैव मल्टीपल इवेंट्स A1 A2 अप टू A के, ये सारे इवेंट्स हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होगी वो दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन की। अगर वो आपस में डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट में फिर क्या होगा कि सबसे पहले जो इवेंट अकर हुआ वो पहले आएगा, उसके बाद फिर सेकंड इवेंट गिवन दैट A1 हैज़ अकर्ड, फिर थर्ड इवेंट गिवन दैट A1 इंटरसेक्शन A2, यानी ये दोनों अकर हो चुके हैं, और अब A3 के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह ये चलता रहेगा कब तक कि फाइनल A के प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग A के गिवन दैट A1 से लेके A के -1 तक अकर हो चुका हो। तो ये कब ये इस्तेमाल करते हैं, जब जो है वो आपके जो इवेंट्स है वो कैसे हों, डिपेंडेंट हो। और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट में क्या है कि A1 अप टू A2 अप टू A के जो है वो ये सारे इवेंट्स हैं, और ये सारे इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का फार्मूला क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई देयर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, यानी A1 की प्रोबेबिलिटी, A2 की प्रोबेबिलिटी अप टू A के, इन सबको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इट इज़ व्हाट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल। जो पीछे आपने अभी दो रूल्स डिस्कस अभी हमने किए हैं, उन दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया है। इसी एक्सटेंशन से एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3 कार्ड्स, ये कार्ड वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है। कार्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपसे जो ना वो लास्ट क्लास में कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया था। तो 3 कार्ड्स जो ना वो ड्रॉ हो रहा है इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, सो विदाउट रिप्लेसमेंट है, याद रखें, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है डिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो कार्ड्स में ख्याल रखिएगा, कार्ड्स में जो है वो दोनों तरह के हो सकता है, विद रिप्लेसमेंट भी हो सकता है क्वेश्चन, और विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट होगा। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ओके, सो फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक ऑफ playing cards, find the probability that the event A1 intersection A2 intersection A3 occurs। ठीक है जी, आपको ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 की, यानी एक्सटेंडेड रूल आपको यूज़ करना है, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल, क्योंकि जो सिंपल है वो 2 इवेंट्स के लिए है, अगर 2 से ज़्यादा इवेंट हो तो फिर एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल हम इस्तेमाल करेंगे। वेयर A1 इज़ द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज़ अ रेड एस। ठीक है, तो एस कार्ड कितने होते हैं हमने डिस्कस कर लिया था। एस कार्ड जो है वो 4 होते हैं। ठीक है ना, 4 सूट है, हर सूट का एक एक एस कार्ड होता है। ठीक है, डायमंड का एक एस होता है, क्लब का एक एस होता है, हार्ट का एक एस होता है, स्पेड का एक एस होता है। तो रेड एस कितने हैं, 2 रेड है और 2 ब्लैक एस है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कार्ड एस कार्ड हो तो एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सक्यूज मी, 52 में से रेड एस कितने हैं, 2 ही रेड एस हैं, तो 2/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई A1 की। इसी तरह A2 क्या है, A2 इज द इवेंट दैट द सेकंड कार्ड इज अ 10 और अ जैक। ठीक है, तो सेकंड कार्ड क्या है,
10 है या फिर जैक है। अब 10 कितने हैं, 4 सूट है और हर सूट में एक एक 10 है, तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो 10 है। इसी तरह जैक भी कितने हैं, चारों सूट्स में एक एक जैक मौजूद है, तो इसका मतलब है कि 4 जैक के कार्ड्स हैं और 4 जो है वो 10 वाले कार्ड्स हैं। तो 4 + 4 कितने कार्ड्स हो गए, 8 कार्ड्स हो गए। लेकिन ये 8 कार्ड्स जो है वो किससे डिवाइड होगा, 51 से, बिकॉज फर्स्ट कार्ड जो है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और वो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो इसका मतलब है जो पहला कार्ड निकला है वो वापस रिप्लेस नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो 2/52 है। तो ये जो है वो आपके पास कितने बच गए, 4 10 के कार्ड्स हैं, 4 जैक के कार्ड्स हैं, तो 10 4 + 4 हो गए 8 कार्ड्स। और डिवाइड किससे होगा, सैम्पल स्पेस आपका एक रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ, इसलिए कि सैम्पलिंग कैसी है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, A2 गिवन A1, यानी ये A2 की प्रोबेबिलिटी है सच दैट A1 ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। A1 अकर्ड होने की वजह से इस पर क्या इम्पैक्ट आया, 52 में से एक कम हो के क्या हो गया, ये 51 हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो थर्ड इवेंट है वो क्या है, A3 इज द इवेंट दैट द थर्ड कार्ड इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7। अब ग्रेटर देन 3 और लेस देन 7 कितने कार्ड्स हैं, ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 4 5 6 कितने कार्ड्स हो गए, 3 कार्ड्स हो गए। तो ये 4 सूट्स है, हर सूट में 3 3 कार्ड्स हो गए। तो स्पेड में 3 कार्ड, क्लब के 3 कार्ड्स, डायमंड के 3 कार्ड्स, हार्ट के 3 कार्ड्स, तो ये कितने हो गए, 3 3 6 और 6 6 12 कार्ड्स हो गए। इसका मतलब है कि ये जो इवेंट A3 है उसमें कितने कार्ड्स है, 12 कार्ड्स हैं। लेकिन डिवाइड किससे होगा, चूँकि 2 कार्ड्स ऑलरेडी आप जो वो ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये थर्ड कार्ड जो है वो 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ हो चुके हैं। तो अब थर्ड कार्ड जो ड्रॉ होगा वो कितने में से होगा, बाकी 50 कार्ड में से ये थर्ड कार्ड ड्रॉ होगा। और थर्ड कार्ड के लिए कंडीशन क्या है कि वो 3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो 3 से ग्रेटर, 7 से लेसर, कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 12 कार्ड्स हैं। तो ये हो गई 12/50। और फिर आपस में फिर चूँकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इनको आपस में क्या करना है, एक्सटेंडेड रूल क्या कहता है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 2/52 मल्टीप्लाई 8/51 मल्टीप्लाई 12/50, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर 8/5525। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स हैं इसको या तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख लें, या फिर जो है वो मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स है उसको आप 4 डेसिमल प्लेस में आंसर करोगे। ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर से इसको यूज़ करोगे तो कैलकुलेटर को फिक्स करें 4 डेसिमल प्लेस में, या फिर आपने 4 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करके इसका आंसर देना होता है। ठीक है। तो ये या तो आप फ्रैक्शन में दे दें या फिर 4 डेसिमल प्लेस में उसको राउंड ऑफ करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लें। अच्छा, इसके बाद अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है, रैंडम सैंपल ऑफ 200 adults are classified by gender and their level of education। तो जेंडर मेल फीमेल और एजुकेशन के 3 लेवल्स है, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल के। तो टोटल जो है वो मेल 38 है, फीमेल 45 है, और इसी तरह सेकेंडरी एजुकेशन में मेल 28 है, फीमेल 50 है, और कॉलेज एजुकेशन में मेल 22 है एंड फीमेल जो है वो 17 है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, find the probability that the person is male given that the person has a secondary education। अब ये क्वेश्चन जो है वो इफ़ स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है और गिवन दैट का ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो इससे आप फ़ौरन जो है वो पहचान जाओगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या होता है कि दो इवेंट्स होते हैं, उसमें एक इवेंट जो वो प्रेजेंट इवेंट कहलाता है और दूसरा इवेंट पास्ट इवेंट कहलाता है। तो स्लैश से पहले या गिवन दैट से पहले जो होता है वो प्रेजेंट इवेंट कहलाता है, और गिवन दैट के बाद जो होता है वो पास्ट इवेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में पर्सन इज मेल गिवन दैट द पर्सन हैज़ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मतलब है कि सेकेंडरी एजुकेशन को अगर मैं एस सपोज करूं और मेल को मैं एम सपोज करूं, तो ये उसकी नोटेशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन एस। ठीक है, M/S होगा। और फॉर्मूला आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन होता है और डिनोमिनेटर में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो इंटरसेक्शन ऑफ
मेल और सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, मेल और सेकेंडरी टोटल कितने हैं 28 है, और डिवाइड किससे होगा, मार्जिनल ऑफ किससे, मार्जिनल ऑफ जो पास्ट इवेंट है उसके मार्जिनल से होता है। पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट इवेंट है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का मार्जिनल से क्या मुराद है, सेकेंडरी में कितने लोग हैं टोटल 28 प्लस 50 कितने हो गए 78 हो गए। तो इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन है इसका आंसर क्या है 28/78 शुड बी द आंसर। उसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लें, पॉइंट्स में ले आए। दूसरा पार्ट क्या है, द पर्सन डज नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। तो कॉलेज डिग्री कितने लोग हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, तो ये कितने हो गए 38 + 28, तो ये हो गए 3 2 5 66 लोग 66 लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, गिवन दैट द पर्सन इज अ फीमेल। तो अब ये देखें कि 66 तो मेल है और हमें चाहिए फीमेल का, तो डज नॉट हैव कॉलेज डिग्री गिवन दैट फीमेल, तो इसका मतलब है कि फीमेल कॉलेज डिग्री जो नहीं है उनके वो कितने हैं 50 + 45, ये हो गया आपके 95। तो इंटरसेक्शन हो गया 95, और डिवाइड किससे होगा, ऑल फीमेल से होगा, क्योंकि जो पास्ट इवेंट है उससे डिवाइड होता है। पास्ट इवेंट क्या है यहाँ पे फीमेल है, तो टोटल फीमेल को सम कर लीजिए 45 50 95, 95 और 17 कितने हो गए 95 और 10 105, 105 + 7 112, ठीक है, तो 112, तो ये इसका आंसर क्या होगा 95 / 112 शुड बी द आंसर। तो ये इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें। अब देखें एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का है, इसमें जो डेटा है वो बाइवेरिएट डेटा है, एक वेरिएबल है क्या, रिलेशनशिप ऑफ हाइपरटेंशन एंड स्मोकिंग हैबिट्स, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन। एच रिप्रेजेंट है हाइपरटेंशन को और NH रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन हाइपरटेंशन को, और स्मोकिंग हैबिट क्या है, नॉन स्मोकर्स, मॉडरेट स्मोकर्स और हैवी स्मोकर का डेटा गिवन है। और ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है is experiencing hypertension given that person is heavy smoker, तो probability of H given heavy smoker, hypertension given heavy smoker, तो ये आपका H given heavy smoker कर ले। इसमें जो वो प्रेजेंट इवेंट क्या है हाइपरटेंशन है और पास्ट इवेंट क्या है हैवी स्मोकर। इसी तरह दूसरा अ नॉन स्मोकर गिवन दैट अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग नो हाइपरटेंशन, तो नॉन स्मोकर और नो हाइपरटेंशन ये आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर गिवन दैट नो हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये तो इसमें डिफरेंट जो है ना वो फिर वैराइटीज़ ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें मॉडरेट स्मोकर गिवन दैट हाइपरटेंशन, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें हाइपरटेंशन गिवन दैट हैवी स्मोकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हाइपरटेंशन गिवन दैट मॉडरेट स्मोकर। तो लॉट ऑफ जो है वो वेरिएशंस जो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। सो द पॉइंट इज यू नीड टू अटेम्प्ट कि हाउ, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है कि कि इसमें प्रेजेंट इवेंट क्या है और पास्ट इवेंट क्या है, ये आपने पहचानना है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखेंगे, तो स्टेटमेंट को देख के इफ़ स्टेटमेंट है गिवन दैट है, तो इसका मतलब ये कंडीशनल के क्वेश्चंस हैं, और कंडीशनल के क्वेश्चंस में जो गिवन से पहले आता है वो प्रेजेंट कहलाता है और गिवन के बाद आता है वो पास्ट कहलाता है। और हमेशा डिवाइड जो करते हैं वो पास्ट के मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कराते हैं, और प्रेजेंट और पास्ट के जो इंटरसेक्शन होता है वो न्यूमरेटर में होता है, ठीक है जी। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखें, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ फ्लू वैक्सीन इज कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स फ्लू सीरम, बैचेस ऑफ सीरम आर प्रोसेस्ड बाय 3 different departments having rejection rate of 0.10, 0.08 and 0.12 respectively. The inspections by the 3 departments are sequential and independent. अब ये देखें ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह का है, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट है और दूसरा जो है ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, तीनों के जो है ना वो क्या गिवन है, रिजेक्शन जो है वो रेट गिवन है। इसका मतलब है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट रिजेक्ट करे उसके 10% चांस है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जो वो क्वालिटी को एक्सेप्ट करे फ्लू वैक्सीन की वो कितनी % चांस है 90% है। सेकेंड डिपार्टमेंट का क्या है 0.08 है, इसका मतलब है कि इसके रिजेक्ट करने की चांसेस 8% है और एक्सेप्ट करने के चांसेस कितनी है 92% है। इसी तरह इसकी जो ना वो रिजेक्ट करने के चांसेस 12% है और एक्सेप्ट करने के चांसेस कितनी है 88% है। कह रहे द इंस्पेक्शंस बाय द 3 डिपार्टमेंट्स आर सीक्वेंशियल एंड इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि ये जो है वो
पहले डिपार्टमेंट 1 से गुजरेगा, फिर डिपार्टमेंट 2 से गुजरेगा, फिर डिपार्टमेंट 3 से गुजरेगा, तो ये सीक्वेंशियल हो गई। और डिपार्टमेंट 1 ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिपार्टमेंट 2 भी रिजेक्ट करे, और 2 ने भी रिजेक्ट कर दिया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिपार्टमेंट 3 जो है वो क्या करे, रिजेक्ट करे। तो इसका मतलब है कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स जो है वो प्रोडक्ट जो गुजरेगा, वैक्सीन जो बनी है उसका जो सीरम है वो तीनों से गुजरेगा सीक्वेंशली, और तीनों के जो रिजल्ट्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। देयर इज़ नो डिपेंडेंसी बिटवीन द आउटपुट ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैच ऑफ सीरम सर्वाइव द फर्स्ट डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन बट इज रिजेक्टेड बाय द सेकेंड डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सेकेंड ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर लिया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैच ऑफ सीरम इज रिजेक्टेड बाय द थर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सीरम जो है वो क्या हो गया, थर्ड डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि फर्स्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, सेकंड ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन थर्ड ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैच ऑफ सीरम सर्वाइव द फर्स्ट डिपार्टमेंट ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सेकंड डिपार्टमेंट ने उसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो अब देखें मैंने एक इसका सोल्यूशन भी इसमें दे दिया है कि रिजेक्शन का क्या है, 10%, 8%, 12% ये गिवन था। तो एक्सेप्टेंस हम निकाल सकते हैं। अगर 10% रिजेक्शन है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सेप्टेंस की क्या होगी, डिपार्टमेंट 1 की, ये डिपार्टमेंट 1 की है प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन की, ये डिपार्टमेंट 2 की है, और ये डिपार्टमेंट 3 की है। इसी तरह एक्सेप्टेंस की अगर रिजेक्शन 10% है तो एक्सेप्टेंस क्या है, 90% है। रिजेक्शन जो है वो 8% है तो एक्सेप्टेंस 92% है। रिजेक्शन 12% है तो एक्सेप्टेंस कितनी है, 88% है। अब पहला पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट 2 क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो डिपार्टमेंट 1 एक्सेप्ट करने की चांसेस है 90%, और डिपार्टमेंट 2 रिजेक्ट करने के चांसेस है 8%। तो आप मल्टीप्लिकेटिव रूल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इसी तरह डिपार्टमेंट 3 रिजेक्ट कर रहा है, चूंकि सीक्वेंशियल है, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट 1 से भी गुजरा होगा, फिर डिपार्टमेंट 2 से गुजरा होगा, फिर जाके डिपार्टमेंट 3 में आया होगा। डिपार्टमेंट 1 ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट 3 ने रिजेक्ट किया है, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट 1 और 2 ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, डिपार्टमेंट 1 के एक्सेप्ट करने की 90% है, डिपार्टमेंट 2 के एक्सेप्ट की 92% है, और डिपार्टमेंट 3 की रिजेक्शन की क्या है, 12% है। तो आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द फाइनल आंसर 0.099। इसी तरह दो क्वेश्चन और यहाँ देख लें कि द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड ऑफ अ हाउस होल्ड इज़ होम व्हेन अ टेली मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव कॉल्स इज 0.4। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि हाउस होल्ड का जो हेड है वो घर पे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40% चांस है कि वो जब भी कॉल आएगा तो घर पे होंगे, वो 40% चांस है। गिवन दैट द हेड ऑफ हाउस इज़ होम, तो ये गिवन दैट है, इसका मतलब है कि ये प्रायर इंफॉर्मेशन है, ये पास्ट जो ना वो इवेंट है कि हेड ऑफ हाउस जो ना वो घर पे है। द प्रोबेबिलिटी दैट गुड्स विल बी बॉट फ्रॉम द कंपनी इज 0.3। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है कि गुड्स जो वो कंपनी से आप चीज़ खरीद लें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.3 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉट द गुड्स गिवन दैट हेड ऑफ हाउस इज़ होम। तो ये फॉर एग्जांपल इसको मैं कहूँ हेड ऑफ हाउस होम को ए कहूँ, और गुड्स विल बी बॉट को मैं कहूँ बी कहूँ, तो ये क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए गिवन है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए गिवन है क्या, 0.3। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड ऑफ हाउस इज होम एंड गुड्स आर बॉट फ्रॉम द कंपनी। तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी की। कैसे पता चला, बीच में एंड है, दोनों इवेंट्स के बीच में एंड है, इसका मतलब है ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सिंपली यू कैन अप्लाई द मल्टी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इन दोनों को, यानी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0.4 है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.3 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉक्टर करेक्टली डायग्नोस अ पर्टिकुलर इलनेस इज 70% चांस है कि बीमारी डायग्नोस होगी, और 30% चांस है कि बीमारी डायग्नोस नहीं होगी। गिवन दैट अ डॉक्टर मेक्स एन इनकरेक्ट डायग्नोसिस, इसका मतलब क्या है, इनकरेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस की क्या है 70% है, तो इनकरेक्ट की क्या है 30% चांस है कि
इनकरेक्ट हो। द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फाइल्स अ लॉ सूट इज 90% है कि जब भी इनकरेक्ट डायग्नोस होगा तो क्या होगा, 90% चांस है कि वो पेशेंट जो है वो क्या करेगा, कोर्ट में उसको केस कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो ऊपर वो जो है ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि इनकरेक्ट डायग्नोस है, और कंडीशनल क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ सूट फाइल करे गिवन दैट इनकरेक्ट डायग्नोस हो। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 90%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर मेक्स एन इनकरेक्ट डायग्नोसिस एंड पेशेंट सूज। इसका मतलब है ये आपको क्या फाइंड करना है, इंडिपेंडेंट सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि बीच में एंड है। तो इनकरेक्ट डायग्नोसिस इंटरसेक्शन पेशेंट सूज, ठीक है। तो इनकरेक्ट डायग्नोस की है प्रोबेबिलिटी 0.3 और पेशेंट सूज की क्या है 0.9। तो 0.9 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0.3 से, यू विल गेट द फाइनल आंसर। और इसी तरह फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अ टाउन हैज़ 2 फायर इंजन्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफिक इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड इज 0.96। ठीक है जी। तो 2 फायर इंजन हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है ये। और अवेलेबिलिटी क्या है फायर इंजन की, 0.96 है, ठीक है। तो दोनों इंजन्स की अवेलेबिलिटी सेम है, 0.96 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फायर इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो नीदर इज अवेलेबल यानी ना इंजन ए अवेलेबल है ना इंजन बी अवेलेबल है। और इसमें क्या है कि दैट अ फायर इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड, इसका मतलब है कि अ फायर इंजन इज अवेलेबल, इसका मतलब है कि इंजन 1 भी अवेलेबल हो या फिर इंजन 2 अवेलेबल हो। तो ये जो है वो क्या है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या है, नीदर इज अवेलेबल, इसका मतलब है ए यूनियन बी का होल प्राइम फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का प्राइम क्या होता है, 1 माइनस ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी का मतलब है इंजन ए भी अवेलेबल हो, इंजन बी भी अवेलेबल हो। और फिर ये चूँकि दोनों इंजन्स जो है वो इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो विल गेट यूनियन की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। और आपको चाहिए नीदर अवेलेबल, तो नीदर अवेलेबल का मतलब ये है कि ए यूनियन बी का प्राइम जो कि क्या है 1 माइनस ए यूनियन बी है, तो ये इसमें से 1 माइनस कर दें, यू विल गेट अ डिजायर्ड आंसर। ठीक है जी। ये 0.9984 है, ये 0.0 नहीं है बल्कि 0.9984 है, जो कि ये आंसर है 9984। 1 में से 9984 माइनस कर दें, यू विल गेट 0.0016। इसी तरह ये जो फायर इंजन है, आ फायर इंजन इज अवेलेबल, इसका मतलब है कि कोई भी फायर इंजन अवेलेबल हो, इधर ए अवेलेबल हो और बी अवेलेबल हो, जिसका मतलब है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0.9984। तो पार्ट बी का आंसर ये 0.9984 है। तो आई होप आपको जो है वो आज का जो लेक्चर है ये क्लियर हो गया होगा, जिसमें आज हमने जो डिस्कस किया है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया है, उसके अलावा प्रोडक्ट रूल को हमने डिस्कस किया है, और इसके अलावा प्रोडक्ट रूल की एक्सटेंशन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट को हमने डिस्कस किया इसमें। ओके जी।